इस केस में जो है ना नीचे वाला जो लेवल इस कोर्ट से मैं बहुत मुतमईन हूँ। जो फैसला हुआ मेरिट पे हुआ, मैं उसमें मुतमईन हूँ। یہ ایک ایسا واقعہ تھا جسے دیکھ کر ہر ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ کیسی درندگی تھی، یہ کیسی وحشت تھی کہ جس سے ہر دل ہی دہشت زدہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کراچی سمیت ملک بھر میں عام آدمی کا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اعتماد ہی اٹھ گیا۔ یہ واقعہ تھا 8 جون 2011 کی شام کا، جب صدر ٹاؤن کی کچی بستی ہجرت کالونی کا رہائشی سرفراز شاہ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر حسب معمول گھر سے تھوڑا دور واقع شہید بے نظیر بھٹو پارک جا پہنچا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ یہاں خود نہیں آیا بلکہ اس کا آخری وقت وہاں کھینچ لایا ہے۔ اور پھر وہاں وہ واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر ہر شخص دہل گیا۔ ایک 19 سالہ نہتے نوجوان کو مارتے ہوئے رینجرز کے ان چند اہلکاروں کے چہروں پر وہ وحشت تھی کہ الحفیظ الرحمان کہ ان افراد کو بندوقیں نہتے افراد کے قتل کے لیے تھمائی گئی تھی، یہی وہ سوال تھا جو ہر کوئی پوچھ رہا تھا۔ 8 جون کے بعد سے ہر پاکستانی شہری کے دل و دماغ میں یہ سوال موجود تھا۔ ہر شخص عدالت میں اس کیس کی سماعت پر نظریں لگائے بیٹھا ہوا تھا اور ہر شخص کو انتظار تھا کہ انصاف ملے گا یا نہیں۔ اور پھر آج 12 اگست 2011 کو انصاف ہو گیا۔ آج کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے رینجرز کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے نوجوان سرفراز شاہ کے قتل میں ملوث ملزم رینجرز اہلکار شاہد ظفر کو سزائے موت، جبکہ دیگر 6 ملزمان کو عمر قید اور 2-2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ویلکم ٹو منظور صاحبہ جو کہ سرفراز شاہ صاحب کی والدہ ہیں، ان کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور طارق چودھری صاحب مجھے جوائن کریں گے اس سیگمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ ان کی پارٹی نے بہت زیادہ شور مچایا تھا کہ انصاف ملے۔ آپ سے آغاز کروں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ سرفراز صاحب کی والدہ سے آغاز کروں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں آج آپ کو انصاف مل چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پوری امید ہے کہ مجھے آج انصاف ملا ہے، آج مجھے انصاف ملا ہے، لیکن اللہ سے آگے بھی امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے مقصد دے گا انصاف۔ آگے کی بات کر رہی ہیں سرفراز صاحب کے بھائی سے میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات تھے کہ شاید دیر لگے گی انصاف ملنے میں، شاید نہیں پتہ چل سکے گا، آپ کیا اب مطمئن ہیں تمام کارروائی سے؟ دیکھیں فریہ، سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد یہ تمام کارروائی جو وہ عمل میں آئی ہے، اگر سپریم کورٹ کے احکامات نہ ہوتے، اس کے نوٹس نہ ہوتے، تو شاید آج ہم بھی اس شہر میں جو لاکھوں کیس کے لوگ جو رول رہے ہیں اسی طرح ہم بھی رول رہے ہوتے۔ یہ تمام کا تمام صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے مرہون منت ہے جو آج ہمیں اتنا کوئکلی انصاف ملا ہے۔ 2 مہینے اور 4 دن کے اندر میرے بھائی کے جو مرڈر تھے ان کے انجام تک پہنچایا گیا ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے انصاف ملنے کا۔ دلی سکون ملا ہے، تسلی ملی ہے، مطمئن ہے ذہنی طور پر، دلی طور پر کہ جی شاید ہمیں اس ملک میں جہاں دن دہاڑے لوگوں کو مار دیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں انصاف ملا ہے۔ لیکن اصل سچ کہوں خوشی اس وقت ملے گی ملزمان کو، ان کی بالا جو عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدلیہ ہے، ان سے بھی یہ سزا مینٹین رہے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آگے اپیل میں جا کر چھوٹ سکتے ہیں لوگ؟ دیکھیں اس جرم میں میرے بھائی کو بربریت سے شہید کرنے والے تمام لوگوں کو پوری دنیا نے دیکھا ہے، کس طرح وہ نہتے بچے کو کس طریقے سے مار رہے ہیں، اور پوری دنیا کے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ ان سے گڑگڑا کے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو کون سی ایسی عدالت ہوگی جو اس ثبوت کو دیکھتے ہوئے ان ملزمان کو چھوڑے گی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دوسرے ملزمان ہیں جنہیں سزائے عمر قید دی گئی ہے، انہیں بھی سزائے موت دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے میرے بھائی کو وہاں مرنے کے لیے تڑپتا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی اس جرم میں اتنی برابر کے شریک ہیں جتنا شاید ظفر شریک ہے، ظفر ملزم جس نے یہ گولیاں ماری ہیں۔ تو دیگر جو ملزمان تھے وہ بھی تو میرے بھائی کو تڑپتا دیکھ رہے تھے وہاں پر۔ اگر ان میں انسانیت ہوتی یا ان میں اگر سینس آف ہیومینٹی ہوتی تو شاید کم از کم میرے بھائی کو وہ بچاتے، لیکن کیا ہے وہ سب میرے بھائی کے مارنے میں، میرے بھائی کو شہید کرنے میں برابر کی شریک ہے۔ تو انہیں بھی شاید یہی سزا ملنی چاہیے تھی جو شاید ظفر کو ملی ہے۔ اور جہاں تک اعلیٰ عدلیہ کی بات ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی بات ہے، تو ہم انشاءاللہ ہر اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے جہاں سے میرے بھائی کے قاتلوں کو ہم لوگ سزا تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کو ان کے انجام تک لے کے جانا ہوگا۔
तारिक चौधरी साहब, खुलकर इस बात का सवाल किया जा रहा था, आपको याद होगा काजी साहब रफीक साहब का भी जो बयान था वो बार बार चलाया गया, अब क्या कहते हैं आप आज के फैसले के आने के बाद? देखें, हमने तो असम्बली में भी मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हमने सदाए एहतजाज बुलंद की थी कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो हैं ये इनके हाथों में हथियार हैं और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। अगर इनके हाथों से इस तरह की खुली दहशतगर्दी होगी और इस तरह का खुली दरिंदगी का मुजाहरा होगा तो कौन अपनी इज्जत और जान माल को महफूज करेगा? अब जो आज के फैसले की बात है जी, मैं दुआ भी करता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस फैसले को आगे भी उसी तरह बरकरार रखा जाएगा। देखें, बात यह है कि आज की अखबार आप उठा के देखें, थाना कऊटा का एक वाक़या है कि सेशन जज पिंडी ने सजाए मौत दी 2 मुलजमों को, जिन्होंने एक 6 साल बच्चा और एक 8 साल बच्चे को पहले अगवा किया, फिर उनके साथ ज्यादती की, उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन उन दोनों को आज शरई अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। यहाँ पे दौलताला गांव है गुजर खान का, वहाँ पे 4 बच्चों का कातिल उनके साथ ज्यादती करने के बाद उन्हें अंधे कुएं में उनकी लाशें उसने फेंकी, मैंने खुद उसको बरामद कराई उसने वो लाशें। क्या वो कातिल किसी रहम का हकदार है? लेकिन हमारी ये अदालती जो निज़ाम है, और मैं आपको हवाला दूंगा आपके अपने एक प्रोग्राम का जो आपने हमारे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट्स में किया था, और आपको याद है मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था कि जितने भी लोग आपसे मिले उन्होंने इस बात का गिला किया कि हमारे जो फैसले हैं उनमें बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, साल लग जाते हैं। ये खुशाइन बात है कि इस मुकदमे का फैसला जल्दी हुआ है, लेकिन अब आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें उसको भी देखना है कि वो भी इसको बरकरार रखें। और जो हमारे लोगों को इंसाफ की ताखीर निचली सतह पर अदालतों में मिल रही है, मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऊपर एक्शन ले रही है सो मोटो, इसके ऊपर भी एक सो मोटो एक्शन ले, और इनको बहुत टाइम फ्रेम के अंदर इनके फैसले होने चाहिए। आपकी वालदा से मैं कहना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहें आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से ये मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी है, मेरे बेटे के कातलों को जो है ना सजाएं मिली है। लेकिन चीफ जस्टिस से मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसे नीचे वालों ने जो है ना नोटिस लिया, इसी तरह वो भी नोटिस ले मेरे बेटे के कातलों का। बस यही मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ, और बस अल्लाह से यही दुआ कर लगा के बैठी हूँ कि मेरे बेटे के जो कातिल हैं अल्लाह पाक उनको सज़ा देगा और ज़रूर देगा। बिल्कुल, आपने कहा कि जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ज़रूर से ज़्यादा, आप इस हवाले से उस कैमरा मैन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी जिसकी वजह से, ख़ासकर मैं सरफराज के भाई से भी पूछूंगी कि जिनकी वजह से ये फैसला जल्दी हो सका, जिसकी वजह से शवाहिद मिल सके? बेटा बस अभी उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? दुआएं कर सकती हूँ ना। एक माँ के दिल से क्या निकलती है? दुआएं निकलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बिलाशुबा दुआएं आपकी चाहिए। बस दुआएं निकलती है, सबको चाहिए दुआएं। बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारे प्रोग्राम में आई, खासकर आज के हवाले से, और सरफराज साहब के भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे अब आप लोग का क्या लाएमल होगा? सरफराज साहब के भाई साहब से मेरा सवाल है। फरिया, देखें, मुस्तकबिल के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम लोग अब तक यही कोशिश कर रहे हैं कि मेरे भाई के जो कातिल हैं उन्हें हम उनका अंजाम तक पहुँचाएँ। और आज जो मैं कोर्ट में था, मुल्ज़मान के वकील यही कह रहे थे कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे इस केस को, इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पर भी उनसे लड़ेंगे। इंशाल्लाह जो यहाँ उन्हें सज़ा दिलवाई है इसको पूरी कोशिश करेंगे कि सज़ा को वहाँ मेंटेन रखें। बल्कि कोशिश तो हम यही करेंगे कि मुल्ज़मान जो बाकी जिन्हें सज़ाए उम्र कैद दी गई है उन्हें सज़ाए मौत दिलवाएँ, ताकि वो भी एक इबरत का निशान बने जिन्होंने जिस तरीके से मेरे भाई को मारा है। और सबसे पहले मैं एक बात यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इस चीज़ को नेगेटिव परसेप्शन ये लिया है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों ने का ये ओवरऑल ये एक फ़ैल था। ये बिल्कुल गलत है। लोग ये परसेप्शन ये क्रिएट करके लोग हमें ये कहना चाहते हैं कि आप एजेंसीज़ को या आप पुलिस को या फोर्सेस को बदनाम कर रहे हैं। तो साफ बात ये है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के एक फ़र्द का ये एक अमल था, इसमें पूरे इंस्टीट्यूशन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंस्टीट्यूशन ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, और ये हमारे मुल्क की फ़ौज है, ये हमारी डिफेंस लाइन है। तो अगर ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। प्यारी बात की है मेरे तो भाई। सबसे बेहतर ये है कि इसी बात पे प्रोग्राम खत्म करती हूँ कि कुछ लोग ये बातें हैं, कुछ काली भेड़ों का हम जिक्र करते हैं, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एतमाद किसी भी तरीके से कम कर सकें। पाकिस्तान के मुहाफिज, पाकिस्तान की फौज की सरहदों के रखवाले हैं, और यकीनन उनको मेरी आपकी सबकी सपोर्ट चाहिए। ये मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक खुशाइन बात इस हवाले से कि अगर इंसाफ मिला तो उसके ऊपर यकीनन हमें अपने इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए। तो तारिक चौधरी साहब, तालिक साहब और सरफराज साहब की वालदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे प्रोग्राम में आए। मगर जाते जाते पाकिस्तान रेलवे की तरह दिन ब दिन अब PIA की कारकर्दगी भी नजर आ रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी जवाल का शिकार हो चुकी है, और लगातार PIA की परवाज़ों में तकनीकी मसाइल सामने आ रहे हैं जो कि लम्हा फिक्रिया है। आज मुल्तान से इस्लामाबाद आने वाली मुसाफिर तैयारा एक हादसे से बाल बच गया। पायलट ने जहाज को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया, ताहिम परवाज के हंगामी लैंडिंग के दौरान 5 मुसाफिर जख्मी हो गए।
4 रोज قبل सियालकोट से जद्दा जाने वाली परवाज को भी तकनीकी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी थी। उसके अलावा आज अबू धाबी से पेशावर जाने वाली परवाज को कैप्टन ने ड्यूटी और आवर्स खत्म होने के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर ही उतार लिया। PIA के कप्तान के मुताबिक ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर वो परवाज नहीं ले जा सकते थे। सही कहा उन्होंने, ड्यूटी आवर्स होते हैं, मगर वो कौन था जिसने ड्यूटी आवर्स के बावजूद पायलट की ड्यूटी लगाई हुई थी? यकीनन इन चीज़ों के ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है, क्योंकि एयर सेफ्टी हम सबकी सेफ्टी है और उसके ऊपर नज़र डालना ज़रूरी है। फेसबुक पर हमारा ब्लॉग रेडी है जो कि सरफराज शाह के हवाले से ये, क्या सरफराज शाह के वरसा का इंसाफ मिल गया? खालिद हसनैन कहते हैं कि अगर इस फैसले पर अमल हुआ तो इंसाफ मिल गया। दानियाल अहमद कहते हैं जी हाँ, सरफराज को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन दूसरे लोगों को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? असद अलवी को लगता है कि अभी इंसाफ नहीं मिला। सैयद सज्जाद काज़मी नहीं मिला क्योंकि वो लोग दोबारा अपील दायर करेंगे और केस लंबे अरसे तक लटक जाएगा। अदनान इसाक खान कहते हैं मेरे ख्याल में सज़ा हुक्मरानों को होनी चाहिए, ये उनका अपना ख्याल है। उसके अलावा मुख्तलिफ लोग, सईद राबिया, नईम अहमद, वकास, अरशद, फैसल परवेज़ और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स हैं जो कि हमारे फेसबुक पर मौजूद हैं, जिस पे आप भी कमेंट दे सकते हैं और न्यूज़ बीट विद फरिया अदरीस या राइट टू मी और newsbeat@sama.tv। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।